Namaskar and pranam to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss CCS Pension Rules 1972 Part 3. So, my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru, so that you can get notification for my upcoming videos. And in today's video, I will discuss departmental or judicial proceedings before retirement and after retirement, and another most important one related to the commercial employment for group A and group B employees. Definitely this video would be interesting one. Also in description box you can get the Telegram link, so please click on it and join it so that you can avail all the videos. So this video would be very useful for principal exams, for departmental promotion exams, principal exams, different state governments. It is very useful for KVS, NVS, UPSC and EMRS principal exams and other departmental exams in central government and state government. So again, I request you, my friends, please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru, so that you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to discuss first one related to the departmental proceedings instituted against a government servant during service and pending at the time of retirement. It is Rule 9 CCS पेंशन रूल्स 1972. यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन मिल गया. रूल 9 में क्लियरली मेंशन है कि ड्यूरिंग सर्विस यदि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रहा है और उसी समय कंसर्न एम्प्लॉय का सुपरअन्वेषण रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होता है, तो उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे. जस्ट बिफोर रिटायरमेंट ऑलरेडी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हैज इनिशिएटेड एंड एट दैट टाइम द कंसर्न एम्प्लॉय retired in superannuation, and then what will happen, in what way the disciplinary proceedings will proceed. So इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट are deemed to be the proceedings under Rule 9 and shall be continued and concluded by the same disciplinary authority and in the same manner. If before retirement already disciplinary proceeding has initiated by the disciplinary authority and in the middle the concerned employee is retired in superannuation, then after retirement the disciplinary proceeding will be going on as usual manner and the proceeding continue by the same disciplinary authority. Same disciplinary authority जिसके द्वारा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था उसी का द्वारा चलेगा, राइट. Thereafter authority will submit a report recording its finding to the president. इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. हम ये डिस्कस किया कि रिटायरमेंट के पहले यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ऑलरेडी इनिशिएटेड हो चुका है, उसी समय कंसर्न एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद एज यूजुअल मैनर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वुड बी इनिशिएटेड बाय द सेम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड आफ्टर कंक्लूडिंग द disciplinary proceeding the report should be submitted to the president. तो जो रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाएगा, राइट. नेक्स्ट वन, पेंशन एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग. प्रोविजनल पेंशन मिलेगा. Only provisional pension is paid as per Rule 69 of CCS Pension Rules 1972. Rule 69
इसको आपको याद रखना है. जस्ट यू रिमेंबर रूल 69. प्रोविजनल पेंशन इज पेड टू द concerned employee on whom the disciplinary proceeding is going on, okay, till the conclusion of the disciplinary proceedings. The provisional pension should be issued to the concerned employee according to the rule 69 of CCS pension rules 1972. ग्रेचुइटी के ऊपर हम बताएंगे. ग्रेचुइटी इज withheld till the conclusion of departmental proceedings and issue of final orders thereon by the competent authority. यदि रिटायरमेंट के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा तब प्रोविजनल पेंशन मिलेगा और उस समय ग्रेचुइटी को विथहेल्ड कर दिया जाएगा. ओके, टिल द कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स. समझ में आया? तो पेंशन में प्रोविजनल पेंशन मिलेगा और ग्रेचुइटी को विथहेल्ड कर दिया जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स and issue of final orders thereon by the competent authority. चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. यहां पर जो दिया है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट. भाई सेम रूल 9 में पहले क्या था, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट ऑलरेडी इट मीन्स द एम्प्लॉई इज इन सर्विस and the disciplinary proceeding has initiated, and in the middle the person has retired in superannuation, and then after retirement as usual manner the disciplinary proceeding would be going on, and the same disciplinary authority, under the guidance of the same disciplinary authority, the disciplinary proceeding would be moved. okay, तो ये डिस्कस कर चुका हूं. यहां पर जो है जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट. Again, same rule 9. Departmental proceeding can be instituted after retirement subject to the following conditions. यदि रिटायरमेंट के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तब क्या प्रोसीजर से? फर्स्ट वन, सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर इंस्टीट्यूटिंग सच प्रोसीडिंग्स. ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सैंक्शन बहुत जरूरी है. यदि रिटायरमेंट के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सैंक्शन जरूरी है. विदाउट सैंक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंसर्न पेंशनर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले हमको याद रखना होगा कि यदि आफ्टर रिटायरमेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए. नेक्स्ट वन, द प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट व्हिच टुक प्लेस मोर देन 4 years बिफोर सच इंस्टीट्यूशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिल गया रिलेटेड टू 4 years. आपको देखना है कि यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा आफ्टर रिटायरमेंट, फर्स्ट यू चेक द इवेंट ऑन व्हिच इवेंट एक्चुअली the disciplinary proceeding would be initiated, and it means the incident, जो भी इंसिडेंट हुआ था वो 4 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Yes, the incident took place in the preceding time, but not more than 4 years. The incident already happened, okay, in past days or in preceding time, but not more than 4 years. यदि 4 साल पहले ऑलरेडी जो इवेंट के ऊपर रिटायरमेंट के बाद जो भी सिचुएशन के ऊपर रिटायरमेंट के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तब उसको देखना चाहिए कि वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो केस. यदि ऑलरेडी द इंसिडेंट टुक प्लेस मोर देन 4 years, देन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैनॉट बी इनिशिएटेड. तो यहां पर 2 चीज याद रखना है. तो आफ्टर रिटायरमेंट इफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंसर्न पेंशनर, देन फर्स्ट वन, acceptance should be required from the honorable president, and second one, on which incident or on which event the disciplinary proceeding would be initiated, the incident took place within 4 years.
Okay, not more than 4 years. Okay, so the proceedings shall not be in respect of any event which took place more than 4 years before such institution. ये बहुत important है. So next one, proceedings shall be conducted by such authority and in such place, or the president may direct, and in accordance with rules applicable to departmental proceedings, in which an order of dismissal from service could be made in relation to the government servant during his service. जो थर्ड है, basically the honorable president choose the authority and also place, and the direction must be required from the president. Okay, which authority actually initiate the disciplinary proceeding and in which place. So everything actually direct by the honorable president, right? तो ये थर्ड है. नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफिसर इज टू रीच हिज फाइंडिंग्स एंड देन सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिफोर फाइनल ऑर्डर्स. तो यहाँ पर जो थर्ड चीज है, फर्स्ट वन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को सैंक्शन करना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट. यदि कोई ऐसा पुराना इवेंट था जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा और वो जो इंसिडेंट हुआ था वो 4 साल के अंदर हुआ था, इट मीन्स द इंसिडेंट टुक प्लेस विद इन 4 years जस्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग, एंड इनिशियली the sanction of the honorable president must be required, right? Then the honorable president actually direct which officer initiate the proceeding and in which place it would be conducted. So everything decided by the honorable president, and then inquiry officer submit the report to the honorable president. Then the president will consult with the UPSC before final orders. ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोई फाइनल ऑर्डर देने के पहले वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कंसल्ट करेंगे. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिल गया. ओके, द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफिसर इज टू रीच हिज फाइंडिंग्स एंड देन सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द यूपीएससी बिफोर फाइनल ऑर्डर्स. Hastily or expediently the final orders cannot be issued by the honorable president. Before issuing final orders, the honorable president must consult with Union Public Service Commission. Right? Next one चलेंगे. When is departmental or judicial proceeding deemed to be instituted? तो इसके ऊपर बहुत कुछ important points है. Departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued to the government servant or pensioner, or is the government servant has been placed under suspension from an earlier dated on such order. तो ये माना जाएगा कि जिस डेट में गवर्नमेंट सर्वेंट को स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इश्यू किया जाएगा, जिस डेट में, उसी डेट में माना जाएगा कि डिसिप्लिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स ओके इनिशिएट हो चुका है. ये माना जाएगा. Departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued to the government servant or pensioner. जिस डेट में स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इश्यू होगा कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को और पेंशनर को, उसी डेट में माना जाएगा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया. और इज द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन फ्रॉम एन अर्लियर डेटेड ऑन सच डेट. और कोई पर्टिकुलर डेट में डिक्लेयर हुआ कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इसी अर्लियर डेट से उसको सस्पेंड कर दिया गया है और अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा. राइट. सेकेंड वन, रिलेटेड टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड. कब हम मानेंगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है? इन द केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, on the date on which the complaint or report of a police officer of which the magistrate takes contingency is made. जिस डेट में रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड द ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट पेरूजल द रिपोर्ट, उसी डेट से माना जाएगा कि ऑलरेडी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुका है. राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस डेट में पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट को पेश करेगा इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट एंड ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट एक्चुअली
पेरिविजल द रिपोर्ट, यू कैन स्टडी द रिपोर्ट, उसी डेट से माना जाएगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गया। इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स, ऑन द डेट द प्लेंट इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, प्लेंट मीन्स कंप्लेंट, जिस डेट में कंप्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा सिविल प्रोसीडिंग्स केस में, उसी डेट से माना जाएगा कि सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया। तो तीन चीज आपको याद रखना है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। क्लियर? तो बेसिकली डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जिस डेट में स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इश्यू होगा गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसी डेट से माना जाएगा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया। रिलेटेड टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जिस डेट में कंसर्न पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट को पेश किया इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट एंड और एन ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट एक्चुअली स्टडी द कंप्लेंट रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, उसी डेट से माना जाएगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया। सिविल प्रोसीडिंग्स, जिस डेट में कंप्लेंट प्रेजेंट होगा कोर्ट में, उसी डेट से माना जाएगा कि सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट वन, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल कीप इन माइंड दैट माइनर पेनल्टी अंडर रूल 16 ऑफ CCA रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 16 में हम जानते हैं कि माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैव टू बी फाइनलाइज्ड बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, इफ ऑलरेडी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हैज इनिशिएटेड, रिटायरमेंट के पहले ऑलरेडी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुका है, मगर ये माना गया कि माइनर पेनल्टी होगा, तब बिफोर रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट इसको फाइनलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि जो माइनर पेनल्टी होता है वो पेंशन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। माइनर पेनल्टी कैन नॉट मेक इफेक्ट ऑन पेंशंस। So just before retirement, if the disciplinary proceeding has initiated and then detect that only minor penalty would be imposed on the concerned employee, then it must be finalized before retirement. We know that minor penalty would not affect on pension, right? मगर यदि मेजर पेनल्टी के ऊपर है, इफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 14, जो अंडर रूल 14 है CCA रूल्स 1965, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965, और यहाँ पर जो रूल 9 ऑफ CCS पेंशन रूल्स, इफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ऑफ CCA रूल्स 1965 और रूल 9 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 have not been instituted before the officer's retirement, they cannot be instituted after retirement except with the sanction of the president. यदि रिटायरमेंट के पहले ये डिटेक्ट हो गया कि मेजर पेनल्टी लगेगा, तब वो प्रोसीडिंग, सपोज रिटायरमेंट के बाद वो प्रोसीडिंग चला, तब उस केस में प्रेसिडेंट का सैंक्शन होना जो बहुत जरूरी है। क्लियर? इफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 14 मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ऑफ CCS रूल्स 1965 और रूल 9 ऑफ द CCS पेंशन रूल्स 1972 हैव नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड बिफोर द ऑफिसर्स रिटायरमेंट, यदि एक्चुअली बिफोर रिटायरमेंट ये डिटेक्ट नहीं हो पाया कि माइनर पेनल्टी लगेगा कि मेजर पेनल्टी लगेगा, यदि माइनर पेनल्टी लगता है तो प्रोसीडिंग को खत्म कर देना चाहिए बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, कि अभी सपोज डिटेक्ट नहीं हुआ कि मेजर पेनल्टी लगेगा, आफ्टर रिटायरमेंट डिटेक्ट हुआ कि मेजर पेनल्टी लगेगा, तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सैंक्शन होना जरूरी है। विदाउट सैंक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, द मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंसर्न पेंशनर, राइट? तो मेजर पेनल्टी के लिए आफ्टर रिटायरमेंट, मेजर पेनल्टी के लिए यदि मेजर पेनल्टी लगेगा, ऐसा कुछ ग्रेव मिसकंडक्ट एक्चुअली मेड बाय द पेंशनर ड्यूरिंग हिज सर्विस टाइम, तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सैंक्शन होना जरूरी है इन केस ऑफ मेजर पेनल्टी, राइट? चलो, द पेंशन और ग्रेचुइटी बी विथहेल्ड ऑन कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स
इसके ऊपर देखेंगे द पेंशन, ये जो हेडिंग है, द पेंशन और ग्रेचुइटी बी विथहेल्ड ऑन कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अभी हम डिस्कस किया कि यदि कोई जुडिशियल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, कि वो बिफोर रिटायरमेंट वो चल रहा था और आफ्टर रिटायरमेंट एज यूजुअल चलेगा बाय द सेम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, राइट। और यदि आफ्टर रिटायरमेंट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, तब उस केस में सैंक्शन लिया जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट का। तो उस केस में बेसिकली द प्रेसिडेंट रिजर्व्स टू हिमसेल्फ द राइट ऑफ विथहोल्डिंग ए पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ, आइदर इन फुल और इन पार्ट, or withdrawing a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period, and or ordering recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the government if any departmental or judicial proceedings the pension is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement. So power to withhold or withdraw pension or gratuity is with President and UPSC is required to be consulted before any final orders are passed. यदि कोई डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रहा है, जो भी रिपोर्ट होगा वो तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट तब वो डिसाइड करेंगे कि पार्ट ऑफ द पेंशन और फुल ऑफ द पेंशन, सिमिलरली पार्ट ऑफ द ग्रेचुइटी और होल ऑफ द ग्रेचुइटी उसको विथहेल्ड किया जाएगा, कितना पीरियड के लिए, ठीक है, कि विथड्रॉ किया जाएगा, पार्ट ऑफ द पेंशन को विथड्रॉ किया जाएगा कि विथहेल्ड किया जाएगा, कि पार्ट ऑफ द ग्रेचुइटी को विथहेल्ड किया जाएगा कि विथड्रॉ किया जाएगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और फॉर टेम्पररी और फॉर परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम। ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है। और बिफोर पासिंग ऑर्डर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट विथ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आफ्टर कंसल्टिंग विथ यूपीएससी द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट वुड बी इनिशिएटेड। तो ये जो जुडिशियल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है, इस केस में आपको याद रखना है, इट इज द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट to withhold pension or gratuity part or full, similarly withdraw pension or gratuity part or full, it is for temporary period of time or permanent period of time, it is the right of the president. And before passing an order by the honorable president, the honorable president must consult with union public service commission, right। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आएंगे, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड बाय whom can reduction or withholding or withdrawing a pension already sanctioned be ordered, procedure to be followed before such an order can be passed। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। जो प्रीवियस पार्ट में था, यदि बिफोर रिटायरमेंट disciplinary proceeding has already initiated and in the middle the employee has retired on superannuation and then after retirement again as usual manner the same disciplinary authority would initiate the disciplinary proceeding। in this case रिपोर्ट किसके पास जाएगा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और एक है, यदि आफ्टर रिटायरमेंट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सैंक्शन होना चाहिए। तब आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, देन honorable president has right to take decision related to the pension and gratuity। ये सब डिस्कस कर चुका हूं, पर यहां पर है related to this, under what circumstances and by whom can reduction or withholding or withdrawing a pension already sanctioned be ordered, procedure to be followed before such an order can be passed। यहां पर एक्चुअली जो डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उसके अलावा क्या प्रोसीजर है उसको छोड़ दीजिए, डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर हमको इंफॉर्मेशन मिल गया। अभी चलेंगे फर्स्ट वन, देखिए, इफ ए पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम और इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे withhold or withdraw a pension
और ए पार्ट देयर ऑफ आइदर परमानेंटली और फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पर अलग है, वहाँ पर तो डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो सैंक्शन, हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सैंक्शन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सैंक्शन करेंगे, उसके बाद वो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होगा, फिर रिपोर्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विथ यूपीएससी पास ऑर्डर्स रिलेटेड टू द पेंशन एंड ग्रेचुइटी। मगर यहाँ पर अलग है, यदि क्या है, इफ द पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम और इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी का पावर है कि मे विथ होल्ड और विथड्रॉ ए पेंशन और पार्ट देयर ऑफ आइदर परमानेंटली और फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी का पावर है। यदि द पेंशनर एक्चुअली कन्विक्टेड इन ए क्राइम और डिड एनी ग्रेव मिसकंडक्ट, then appointing authority has right to take decision related to the withdraw or withhold a part or full of pension and gratuity permanently or for a specified period of time. Next one, यदि पार्ट ऑफ द पेंशन को विथड्रॉन कर दिया जाता है, इफ ए पार्ट ऑफ द पेंशन इज विथहेल्ड और विथड्रॉन, मगर जो मिनिमम पेंशन 9,000 होना चाहिए पर मंथ, 9,000 से कम नहीं होगा। Yes, part of the pension withdrawn or withheld, but minimum pension should be paid and it is rupees 9,000 per month. If a pensioner, third one, if a pensioner is convicted of a serious crime by a court of law, action shall be taken in the light of the judgment of the court relating to such conviction. यदि pensioner convict होता है court of law में, तब it is mainly depend upon the light of the judgment. तो कोर्ट क्या जजमेंट देता है, व्हाट टाइप ऑफ जजमेंट एक्चुअली गिवन बाय द कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट देन द डिसीजन वुड बी टेकन रिलेटेड टू द पेंशन एंड ग्रेचुइटी, कि उसको विथहोल्ड किया जाएगा कि विथड्रॉ किया जाएगा, पार्ट किया जाएगा कि फुल किया जाएगा फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए कि परमानेंट। सो ये डिसीजन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, राइट। Fourth one, in other cases, if the appointing authority feels that the pensioner is guilty of grave misconduct, यदि ये जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी फील करता है कि एक्चुअली द पेंशनर इज गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, तब एक सो कज नोटिस इशू होगा पेंशनर को, और 15 डेज के अंदर, जिस डेट में एक्चुअली वो पेंशनर एक्सेप्ट करेगा सो कज नोटिस, विद इन 15 डेज एक्चुअली ही मस्ट सबमिट द रिपोर्ट, और वो और 15 डेज भी एक्सटेंड किया जाएगा। वही दिया है कि यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी फील्स दैट यस द पेंशनर डिड ग्रेव मिसकंडक्ट, देन सो कज नोटिस इशूड टू द पेंशनर फॉर सबमिटिंग इज रिप्रेजेंटेशन विद इन 15 डेज। तो फर्स्ट 15 डेज एक दिया जाएगा और उसको फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा 15 डेज। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसको मैं अंडरलाइन कर चुका हूं। यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी फील करता है कि यस द पेंशनर एक्चुअली डिड ग्रेव मिसकंडक्ट, वो फील करता है कि इन्वॉल्व इन क्राइम, तब सो कज नोटिस इशू होगा। तब जिस डेट में द पेंशनर एक्चुअली सो कज नोटिस को एक्सेप्ट करेगा, विद इन 15 डेज एक्चुअली ही मस्ट सबमिट द रिपोर्ट, और वही 15 डेज और 15 डेज और एडिशनल 15 डेज उसको दिया जाएगा। फर्स्ट 15 डेज देन अगेन अनदर 15 डेज उसको दिया जाएगा, ठीक। Then the final order shall be passed after taking into account the representation made by the pensioner. Then pensioner representation देगा, फिर representation must be studied by the appointing authority, then action should be taken, okay, related to the pension and gratuity. Where the appointing authority is the president, the UPSC shall be consulted before the order is passed. हम जानते हैं कि जो ग्रुप ए ऑफिसर्स है उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, तो यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं तो डायरेक्टली नहीं लेंगे। बिफोर पासिंग एन ऑर्डर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट विथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, ये भी याद रखना है। यदि अपील किया जाएगा, अन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर, यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर दे दिया और वो ऑर्डर के अगेंस्ट में द कंसर्न पेंशनर वो अपील किया, वो अपील किसके पास जाएगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। An appeal against an order passed by any authority other than the president shall be to the president. तो ये इसको याद रखना है। यदि other than the honorable president है अथॉरिटी एंड उसका ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील किया जाएगा, तब वो अपील
किसके पास जाएगा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। देन ऑर्डर्स ऑन द अपील शैल बी पास्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द यूपीएससी। जब वो अपील किया जाएगा, वो अपील जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, देन ऑनरेबल प्रेसिडेंट कंसल्ट विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली पेंशन कैन नॉट बी विथहेल्ड और विथड्रॉन सब्सिक्वेंटली। यदि फैमिली पेंशन मिल रहा है तब फैमिली पेंशन को विथहेल्ड नहीं किया जा सकता कि उसका एक पार्ट को विथड्रॉन नहीं किया जा सकता। देन कभी कभी क्या है कि रिकवरी रिपोर्ट, अभी हम जानते हैं कि डिपार्टमेंटल एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स केस में रिपोर्ट एक्चुअली सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, तब वहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट देखेंगे कि कुछ गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, जो ग्रेव मिसकंडक्ट के वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, वो तो लॉस को रिकवरी किया जाएगा। वही दिया है, रिकवरी ऑफ पेकुनियरी लॉस नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द पेंशन। जो रूल 9 में है, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट देखते हैं कि जो ग्रेव मिसकंडक्ट हुआ है उसमें गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, कुछ पेकुनियरी लॉस हुआ है, वो लॉस को रिकवरी किया जाएगा कंसर्न एम्प्लॉय से, तब उसको जो पेंशन मिल रहा है, ठीक है, उसका 1/3 पेंशन का 1/3 उससे रिकवरी किया जाएगा। ठीक है, तो रिकवरी ऑफ पेकुनियरी लॉस नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द पेंशन, पेंशन का 1/3 से रिकवरी किया जाएगा। यदि एवरी मंथ कुछ इट मीन्स रिकवरी किया जाएगा जो पेकुनियरी लॉस गवर्नमेंट को हुआ है, तब एवरी मंथ में एक्चुअली 1/3 ऑफ द पेंशन एक्चुअली रिकवरी होगा। इसको याद रखना है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट ऑन माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैज नो इफेक्ट ऑन पेंशन। अभी हम डिस्कस किए थे कि यदि बिफोर रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ सर्विस, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, इफ द already disciplinary proceeding has initiated and the disciplinary authority detect that the minor actually in this case the minor penalty would be imposed on the concerned employee, then it must be finalized before retirement. Before retirement उसको फाइनल कर देना है, क्योंकि माइनर पेनल्टी एक्चुअली वुड नॉट क्रिएट एनी इफेक्ट ऑन द पेंशन। भाई माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैज नो इफेक्ट ऑन पेंशन, ये भी रूल 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में क्लियरली मेंशन है। ओनली मेजर पेनल्टी होगा तो उसका इफेक्ट पेंशन के ऊपर होगा, राइट, क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं कि उसको कितना विथहोल्ड किया जाएगा, पेंशन और ग्रेचुइटी का कितना पार्ट विथहोल्ड किया जाएगा, कि पेंशन और ग्रेचुइटी का कितना पार्ट को विथड्रॉन किया जाएगा, और उसको टेम्पररी किया जाएगा कि परमानेंटली किया जाएगा, कि पूरा पेंशन ग्रेचुइटी को पूरा विथड्रॉन किया जाएगा। तो ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे, पर ये सब मेजर पेनल्टी केस में। और माइनर पेनल्टी केस में क्या होता है, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है पेंशन के ऊपर। चलो नेक्स्ट वन, रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर फाइनल ऑथराइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें देखेंगे कि एक्सेप्ट इन केसेस कवर्ड बाय रूल्स 8 एंड 9, जो रूल 8 है, रूल 8 में क्लियरली मेंशन है सीसीएस पेंशन रूल्स, जब द पेंशनर एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ क्राइम, कि द पेंशनर डीड एनी टाइप ऑफ इट मीन्स डीड एनी ग्रेव मिसकंडक्ट, तो उस केस में रूल 8 लागू होता है। अभी हम डिस्कस किया कि उस समय अपॉइंटिंग अथॉरिटी का पावर है, वो पेंशन और ग्रेचुइटी को विथहोल्ड कर सकते हैं और विथड्रॉन कर सकते हैं। और जो रूल 9 है जो डिपार्टमेंटल एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, तो आपको याद रखना है रूल 8 के ऊपर बेसिकली एनी क्रिमिनल, द पेंशनर इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज और इन्वॉल्व इन एनी ग्रेव मिसकंडक्ट, और जो रूल 9 है बेसिकली रिलेटेड टू द डिसिप्लिनरी एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इस केस में एक्चुअली पेंशन के ऊपर प्रभाव होता है। पेंशन वंस ऑथराइज्ड आफ्टर फाइनल असेसमेंट शुड नॉट बी रिवाइज्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसके अलावा रूल 8 एंड रूल 9 में एक्चुअली पेंशन के ऊपर प्रभाव होता है। ओके, रूल 9 रिलेटेड टू द डिपार्टमेंटल एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड रूल 8 रिलेटेड टू द ग्रेव मिसकंडक्ट एंड सपोज इन्वॉल्व इन क्राइम्स। सो इस केस में एक्चुअली पेंशन का इफेक्ट होता है, अदरवाइज पेंशन का इफेक्ट नहीं होगा। तो पेंशन वंस ऑथराइज्ड आफ्टर फाइनल असेसमेंट शुड नॉट बी रिवाइज्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। एक बार वो पेंशन ऑथराइज हो चुका है मीन्स वो क्या है, उसका रिवीजन होने से एक्चुअली डिसएडवांटेज होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को। ओनली रूल 8 एंड रूल 9 के अलावा और कभी भी एक्चुअली ऐसे आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन वो पेंशन को रिवाइज नहीं किया जाएगा। और कभी कभी है
यहाँ पर क्लियरली मेंशन है अनलेस सच रिवीजन बिकम्स नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ ए क्लरिकल एरर सब्सिक्वेंटली। यदि हाँ इसके अलावा रूल 8 एंड 9 को छोड़ दो, उसमें पेंशन प्रभाव होगा। उसके अलावा पेंशन एक बार ऑथराइज हुआ मीन्स उसको रिवाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिवाइज होगा तो वो फिर डेफिनेटली इट इज डिसएडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उस केस में यदि कुछ क्लरिकल एरर सब्सिक्वेंटली मिलता है तो उसको रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिवाइज नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट रूल 8 एंड रूल 9। सेकेंड वन बहुत इंपॉर्टेंट वन, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इफ सच एरर इज डिटेक्टेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन, ऑलरेडी पेंशन ऑथराइज हो चुका है, ऑथराइज होने के बाद आफ्टर 2 years कुछ एरर इसमें डिटेक्ट हुआ, जो पेंशन को डिसाइड किया गया है, फिक्स किया गया है, उसमें कुछ एरर डिटेक्ट किया गया, मगर आफ्टर 2 years, ओके 2 years आफ्टर द ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन, then concurrence of department of personnel and training is necessary for the revision। 2 years के बाद, विदिन 2 years पेंशन ऑथराइज हुआ, विदिन 2 years ऐसा कुछ एरर उसमें डिटेक्ट हुआ, तो विदाउट इट मीन्स कंसल्ट विथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वो एरर को रिवाइज किया जा सकता। मगर इफ इट मीन्स 2 years आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन, इफ एनी टाइप ऑफ एरर वुड बी डिटेक्टेड, then compulsorily डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग शुड बी कंसल्टेड फॉर रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल गया। इफ इट इज टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द पेंशनर, राइट। चलो नेक्स्ट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चलेंगे। रूल 10 में है रिलेटेड टू कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। रूल 10 इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल गया। रूल 10 CCS पेंशन रूल्स 1972, एवरी रिटायर्ड ग्रुप ए ऑफिसर should take the permission of the government before he accepts any commercial employment within 1 year of his retirement। यदि कोई ग्रुप ए ऑफिसर want to take any type of commercial employment within 1 year of his retirement, then he must take the permission of the government। Without permission actually he cannot accept commercial employment, right। तो रिटायरमेंट के बाद 1 year के अंदर यदि उसको कमर्शियल कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलता है तब वो परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, ठीक है। तो बिफोर एक्सेप्टिंग एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट द परमिशन शुड बी रिक्वायर्ड। सेकेंड वन, द पेंशनर डिजायर टू एक्सेप्ट पोस्ट रिटायरमेंट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर टू ऑब्टेन स्पेसिफिक अप्रूवल प्रायर टू अंडरटेकिंग द असाइनमेंट। तो ये मैं बताया अभी, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले गवर्नमेंट का परमिशन बहुत जरूरी है। विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट एनी टाइप ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एंड एनी टाइप ऑफ असाइनमेंट रिलेटेड टू कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। रिलेटेड टू द फॉर्म है, ऑन ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ही रिक्वेस्ट टू सबमिट फॉर्म 25। तो अप्रूवल के लिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए विद इन 1 year ऑफ हिज रिटायरमेंट, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट का अप्रूवल के लिए वो फॉर्म 25 एक्चुअली सबमिट करेगा। On obtaining the approval, he requests to submit Form 25. Form 25 application for permission to accept commercial employment within a period of 1 year after retirement in the form of affidavit। तो यहाँ पर फॉर्म को याद रखना है, फॉर्म 25 है। यदि रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 year आपको कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना है रिलेटेड टू द ग्रुप ए ऑफिसर, तो फॉर्म 25 को फिलअप करना है और सबमिट करना है। फॉर्म 25 एक्चुअली एप्लीकेशन of for permission to accept commercial employment, right। Retired group B officer should give intimation to the ministry or department or under which they last served if he required to take up a commercial employment within 1 year of retirement। Similarly group B officer के लिए क्या है, यदि within any group B officer want to take commercial employment within 1 year of retirement, then he must intimate to the concerned ministry or concerned department और अंडर व्हिच दे लास्ट सर्व्ड, जो ऑफिस में लास्ट वो सर्व कर रहा था वो ऑफिस को इंटीमेट कर सकता है और उसका डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर सकता है और उसका जो मिनिस्ट्री है उसको इंटीमेट करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 year ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट वन, नो, जो फिफ्थ वन, नो पेंशन शैल बी पेबल टू द पेंशनर हु एक्सेप्ट सच एन एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रायर परमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड for which he is so employed or such longer period as the government may direct। तो यदि without permission of the government if any officer
accept the commercial employment, basically group A officer accept the commercial employment without permission of the government, then उसका जो पेंशन है उसको विथहोल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली विदाउट परमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड फॉर विच वो एम्प्लॉयड, जितना पीरियड के लिए वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो उतना पीरियड उसका पेंशन को विथहोल्ड कर दिया जाएगा, और लॉन्गर पीरियड एक्चुअली इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। If a group A officer is granted permission to take up commercial employment during leave preparatory to retirement, no further permission is necessary for continuing the employment after retirement. हम जानते हैं कि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट जो मैक्सिमम 300 डेज के लिए, जो 300 मैक्सिमम हम कितना ईएल को एनकैश कर सकते हैं 300 डेज, तो वो हम एनकैश नहीं करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम 300 डेज ईएल हम लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में जा सकते हैं। उसी पीरियड में कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट होता है, इट मीन्स आफ्टर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट विद इन लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट इफ द ग्रुप ए ऑफिसर टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ज्वाइन the commercial accept the commercial employment, then after retirement actually it is not necessary to again to accept to take the permission of the government, okay। तो यदि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के अंदर वो कंसर्न ग्रुप ए ऑफिसर वो गवर्नमेंट का परमिशन ले चुका है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो रिटायरमेंट के बाद उसको जरूरी नहीं है फिर परमिशन लेना, राइट। If an application for accepting a commercial employment within 1 year after retirement, no communication is received from the government within 60 days, the permission shall be deemed to have been granted। ये जो 60 days है इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिल गया। तो अभी हम बताएं कि जो ग्रुप ए ऑफिसर है within 1 year of his retirement, he must take the permission of the government before accepting commercial employment। तो अभी वो फॉर्म 25 जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दिया, फर्स्ट गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, मगर गवर्नमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला 60 डेज के अंदर, जिस डेट में वो फॉर्म 25 जो एप्लीकेशन को सबमिट किया कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए, देन उसी डेट से आप 60 डेज काउंट कर लो, उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो आफ्टर 60 डेज ये माना गया कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो यहां पर विद इन 60 डेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ग्रुप ए ऑफिसर वो विद इन 1 ईयर ऑफ हिज रिटायरमेंट वो गवर्नमेंट को परमिशन मांगा, फॉर्म 25 जो एप्लीकेशन है सबमिट किया कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए, और 60 डेज के अंदर उसको परमिशन नहीं मिला, तो ये माना गया कि उसको परमिशन मिल गया। और एक है 7th वन, बहुत इंपॉर्टेंट वन, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, रिटायर्ड ग्रुप ए ऑफिसर कैन मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रांटिंग परमिशन फॉर टेकिंग ऑफ एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट। यदि गवर्नमेंट मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक ग्रुप ए ऑफिसर वो फॉर्म 25 एप्लीकेशन सबमिट किया फॉर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए और गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज कर दिया, जिस डेट में रिफ्यूजल ऑर्डर मिल जाएगा ग्रुप ए ऑफिसर को, कंसर्न ग्रुप ए ऑफिसर को, तो उसी डेट से आप 30 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन अगेन रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, ओके, फॉर फर्दर रिफरेंस, ओके, इन रिगार्डिंग टू द ऑर्डर, राइट। तो यहां पर एक क्वेश्चन मिल गया, जिस डेट में उसको रिफ्यूजल ऑर्डर मिलेगा ग्रुप ए ऑफिसर को कि आपको कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है, तो उसी डेट से 30 डेज के अंदर उसको रिप्रेजेंटेशन देना है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग दैट ऑफ एन एजेंट, ये है कमर्शियल जो एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग दैट ऑफ एन एजेंट अंडर ए कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्म और इंडिविजुअल एंगेज्ड इन ट्रेडिंग, commercial, industrial, financial or professional business, and also includes directorship of such company and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate wholly or substantially owned or controlled by the central government or a state government। ये जो last sentence but does not include, तो जो commercial employment है, सभी प्रकार का कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो ग्रुप ए ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा, मगर बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट एनी कॉर्पोरेट बॉडी होली और सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो एक्चुअली कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा, इसको याद रखना है। यदि कोई ऐसा कोई कॉर्पोरेट बॉडी है जिसको होली की पार्टली
उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तब उस कॉर्पोरेट बॉडी में हम कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। ये रूल 12 है। यदि रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 ईयर ऑफ हिज रिटायरमेंट यदि ग्रुप ए ऑफिसर ही वांट टू टेक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसके ऊपर क्या रूल है? ये रूल 12 है, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, a retired group A officer should take the prior permission of the central government before he accepts any commercial employment outside India. ये अब्रोड के लिए, if the suppose after retirement clear a group A officer want to take commercial employment in abroad, then prior of that he must take permission of the central government. If prior permission is not obtained, no pension will be paid to him. यदि prior permission कंसर्न ग्रुप ए ऑफिसर नहीं लिया और वो जाकर अब्रोड में कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट किया, तब उसका पेंशन उसको नहीं मिलेगा, पेंशन उनको पेड नहीं किया जाएगा। इफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन परमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू टेक अप द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग हिज लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट होता है मैक्सिमम 300 डेज होता है, तो उसमें यदि इफ द गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन to the concerned group A officer to take commercial employment in abroad, then रिटायरमेंट के बाद उसको और एक बार परमिशन ले लेना चाहिए गवर्नमेंट से। तो वही दिया है, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन परमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू टेक अप द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग हिज लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, then no subsequent permission is required for continuing the same after retirement. यदि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम में तो कंसर्न ग्रुप ए ऑफिसर ऑलरेडी गवर्नमेंट का परमिशन ले चुका है, ठीक है, द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन परमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू टेक अप द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, देन इन सब्सिक्वेंट और इन पोस्टरिंग टाइम अगेन it would not be required, okay, for permission of the government related to take up employment in abroad. तो ये जो था रिलेटेड टू द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर था और कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था ये जो पार्ट। सो प्लीज माय फ्रेंड्स गो थ्रू द वीडियो टिल द एंड, सो मच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आर देयर, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो ऑल्सो in this video you just see the description box. In description box actually my Telegram channel link is there, click on it and join my channel and you can avail all the videos. Thank you and namaskar.